آئیے میرے پیچھے سب بولیے، ابراہیم سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلے سے برکت پائیں گی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا، اور وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کریں، تاکہ جو کچھ خداوند نے ابراہیم کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کرے۔ آمین۔ یاد رکھیے کہ خدا کے مقدس نام کے مطابق ہم سارے اس نام سے سارے واقف ہیں، سارے جاننے کے ابراہیم کون ہے، اس کا کردار کی ہے، ٹھیک ہے؟ سو چند اور مفید باتیں میں چاہتا ہوں کہ آج ہم خدا کے مقدس نام سے سیکھیں۔ ہم نے 2 بار پہلے سیکھا کہ باپ ہونا کیا ہوتا ہے اور باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ہم بخوبی جانتے ہیں، بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اکیلے باپ ہونا ہی کافی نہیں ہے، اور جب خدا نے اولاد دیتا ہے ہم فوراً یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بچوں کے لیے کھانا پینا رہنا پالنا بس سب سے ہماری بڑی ذمہ داری یہی ہے۔ آج کے بعد دنیا میں میرا اور کوئی کچھ بھی نہیں، نہ میرا کوئی کام ہے، نہ کاج ہے، نہ رہنا ہے، نہ سانا ہے، نہ کھانا پینا ہے، بس بچوں کی پرورشی میرا سب سے بڑا کام ہے، اور کما کر لانا خواہ وہ کسی بھی طرح کیا جائے، کوئی بھی ذریعہ ہو، بچوں کو خوش رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ اور بائبل مقدس کی پاک تاریخ یہ بتاتی ہے کہ لوگوں نے اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے وہ کام کر ڈالے جو خود بھی جانتے تھے کہ یہ گناہ ہے، پاپ ہے، بدی ہے، ناراضگی ہے، ناپاکی ہے، خدا کے خلاف ہے، لیکن انہوں نے ایسا کیا۔ آج ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، روزانہ لوگوں سے یہ باتیں سنتے ہیں، کوئی نہ کوئی وہ بتاتا ہے، ایک جج، ایک وکیل، ایک انتہائی پڑھا لکھا شخص، صرف ان پڑھ ہی نہیں، ایک پڑھا لکھا شخص، انتہائی تعلیم یافتہ شخص یہ کام کرتا ہے، ایک بھاری رقم لے کر وہ اپنے بچوں کی خوشی کی خاطر قاتل کو بے گناہ قرار دیتا ہے، قاتل کو آزاد کر دیتا ہے، اور ایک بے گناہ شخص کو وہ قاتل بنا دیتا ہے۔ کس کی خاطر؟ اپنے بچے کی، اپنی نسلوں کی خوشیوں کی خاطر۔ بچوں کو بنگلے ملے، بچوں کے پاس اے سی ہو، بچوں کے پاس 3 گھر ہو، بچوں کی باہر بھی پراپرٹی ہو۔ ہمارے ملک کے اندر ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے، آپ سارے جانتے ہیں، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں نے بھی خبروں میں پڑھا، آپ بھی خبروں میں پڑھا، ہمارے سابقہ وزیر اعظم کا سب سے بڑا مسئلہ یہی چل رہا ہے۔ جب بھی ٹی وی پہ آتا تو انہوں نے 300 ارب روپیہ باہر پہنچا دیا، منی لانڈرنگ سے کہا جاتا ہے، ملک داؤ پہ لگا دیا۔ آج بھی ایک گرم خبر چل رہی ہے، انسان اپنے بچوں کی خاطر ہر بات، ساری دنیا برباد ہو جائے، ساری دنیا مر جائے، سارے رک جائیں، سارے ٹوٹ جائیں، سب کے پلے کچھ نہ بچے، لیکن بچوں کو خوش رکھنا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میری اخلاقی فرض ہے۔ صبح سے گھر نکلنا، گھر رات تک کام کرنا، تھکیا کر سو جانا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچے پالنا ہے، لیکن یہ میری آپ کی تشریح ہے، بائبل کی تشریح یہ نہیں ہے۔ بائبل مقدس ہم سے مختلف توقع رکھتی ہے۔ خدا ہم سے ایک اور طرح کی توقع کرتا ہے۔ خدا کی یہی مرضی نہیں ہے کہ انسان صبح سے نکلے اور شام کو تھکا ماندہ آئے اور آرام سے سو جائے۔ یہ خدا کی مرضی نہیں، یہ خدا کا حکم نہیں، یہ بائبل کی تعلیم نہیں ہے، یہ خدا کے احکامات نہیں ہے، بائبل کی یہ آشا نہیں ہے۔ بائبل یہ نہیں چاہتی، خدا یہ نہیں چاہتا کہ جو ہی خدا نے نسل دی سارا دن میں کام پہ رہا، سارا ہفتہ میں کام پہ رہا، سارا مہینہ کام پہ گزار دیا، سارا سال کام پہ گزار دیا، ساری زندگی گزر گئی، بال سفید ہو گئے،
मरे और बच्चे ने उठाया, 4 में डाल के कब्र में डाल दिया। ये खुदा की मर्जी नहीं है। खुदा हमें बाप भी बनाता है या माँ भी बनाता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि अभी अब्राहम की औलाद नहीं पैदा हुई और खुदा कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने बेटों को और घराने को जो उसके पीछे रह जाएगा वसीयत करेगा। क्या करेगा भाई? क्या करेगा भाइयों? बताएं क्या करेगा? वसीयत करेगा। क्या वसीयत करेगा भाई? कि वो खुदा की राह में कायम रहे। खुदा की राह में आज दुनिया का हाल क्या है? दुनिया में हमारे बच्चों के पास एक बड़ा घर होगा, कार, एसी लगा हुआ, मैं करप्शन करूं, बेईमानी करूं, लूट खसूट करूं, मार धाड़ करूं, तबाही फेर दूं, लोगों को लूट कर खा जाऊं, पैसे चुरा लूं, बेईमानी कर लूं, लेकिन मेरे बच्चे आराम से रहे। वो जिस मर्जी राह पे चले, वो शराब पिए, वो गालियां निकाले, वो स्मोकिंग करें, वो सर फाड़े, वो आवारा हो जाए, वो बदकार बन जाए। इस बात की बहुत सारे बाप ऐसे हैं जिनको रत्ती पर परवाह नहीं कि उनके बच्चे पाक हों, उनके बच्चे रास्त हों, उनके बच्चे नेक हों, उनके बच्चे चर्च जाएं, उनके बच्चे गीत गाएं, उनके बच्चे तालियां बजाएं, उनके बच्चे हारमोनियम सीखें, उनके बच्चे तबले सीखें। बहुत सारे ऐसे बाप हैं जिनको इस बात की कोई परवाह नहीं है। वो करप्शन करेंगे, बेईमानी करेंगे, लूटेंगे, घसूटेंगे, बस बच्चे आराम से जाए। आप एक दिन देखेंगे वो बाप भी जहन्नम में होगा और बच्चे भी जहन्नम होंगे। बाइबल की ये मर्जी नहीं, कलाम लिखा है खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंच जाए। हालेलुया, खुदा की ये आशा है, खुदा की ये मर्जी है। लेकिन खुदा का तरीकाकार है, जहन्नम से बचाने के लिए तरीकाकार है। और तरीका ये है कि बाप होने का मतलब ये नहीं है, बाप होने का ये मतलब नहीं है कि सारी दुनिया कमाश माकर मैं बच्चों को झोली में डाल दूंगा। मेरी एक और भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को खुदा की राह की तालीम दो। हालेलुया, बच्चों को खुदा की राह की, बच्चों को खुदा की राह की। सुनिए, खुदा के पाक कलाम के मुताबिक अब्राहम, अब इसको औलाद नहीं मिली, अब वो खुदा कह रहा है भाई अब्राहम से एक नस्ल चलेगी। क्या होगा भाइयों? अब्राहम से एक, और अब्राहम उनको आवारा नहीं छोड़ देगा, बड़े बड़े बिजनेस कर नहीं देगा। खुदा ने कहीं नहीं कहा अब्राहम उनको कोठियां बनाकर नहीं देगा, बल्कि मेरी राह की तालीम देगा। हालेलुया, मेरी राह की अदल सिखाएगा, इंसाफ सिखाएगा, मेरे कानून सिखाएगा। ये अब्राहम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब सुनिए, क्या ये आसान काम था? क्या ये अब्राहम को अपने बच्चों की तरबियत करने के लिए कोई मेरी आपकी तरह आज की तरह कोई आसान काम था? सुनिए, अब्राहम के चारों तरफ शहरों में, देहातों में, कॉलोनियों में, बस्तियों में, गांव में बदकारी, उबाशी, हरामकारी, शराबनोशी, डांस वांस, फैशन, क्लब, चारों तरफ बदी और बदकारी फैली हुई थी। 5-5, 10-10 शादियां करने का रवाज था। लोग सुबह शाम शराब पीते थे। हया था, ना लिबास का, ना रहने का, ना सहने का, ना खाने का, ना पीने का, ना जीने का, ना मरने का। सारे शहर बदकारी और बदी से भरे हुए थे, नाराजगी से भरे हुए थे, अय्याशी से भरे हुए थे। अब्राहम को खुदा ने कहा कि शहरों को छोड़ दो। क्या करो भी? शहरों को। यकीन माने कि अब्राहम जब निकला तो उसने अपनी बोरी में सोना डाला हुआ था। सोना कहाँ था? बोरियों में। और गालिबन अब्राहम के पास 1000 नौकर था। कोई इतना अमीर है इस इलाके में आपके? 1000 नौकर जिसके पास और बोरियों में सोना डाला हुआ। बताइए, अगर आपके पास 1000 नौकर हो और 2 बोरियां सोना हो तो क्या करेंगे? अब्राहम को खुदा ने कहा कि कपड़े का घर बना, टेंट लगा। क्या कर भाई? टेंट लगा। अब्राहम खैमों में रहा। जब आपके पास
वक्त सबसे पहले आप कोशिश करेंगे कि सबसे इलाके में जो बड़ा प्लाट है वो खरीदें। क्या करें? और बड़ा प्लाट खरीदकर बड़ा घर बनाए ताकि सारे लोग आते जाते आपको देखें। अब्राहम के पास रुपया पैसा है, धन दौलत है, वो अपने जमाने का अमीर शख्स है, लेकिन अब्राहम खेमों में चला गया, खेमों में रहने लगा। दिन रात धूप, गर्मी, छिपकलियां, सांडे, जंगली जानवर और रेत आती है और सर में पड़ती है। सारा शहर में रहने वाली थी, अब ना पार्लर रहा, अब ना बाल दाई होते हैं, ना कोई टाटा बाजार है, ना साड़ियां हैं, ना लहंगे हैं, ना मेहंदियां हैं। एक अमीर कबीर औरत कपड़े के घर में रह रही है। एक अमीर शख्स एक सादा लिबास पहनकर, सर पे पगड़ बांधकर, डंडा चपड़ के रेतों पे सोता है। और चारों तरफ कोठियां बनी हुई हैं, चारों तरफ बंगले हैं, बड़े बड़े महल बने हुए हैं। वो बेचारे बोरियों में सोना डालकर, रुपया पैसा बोरियों में डालकर, करोड़ों अरबों का माल डंगर सा लेकर चल फिर रहे, नौकर बेतहाशा है। अब्राहम का दिल चाहता होगा मैं 10-12 प्लाट खरीदूं, 2-3 प्लाटों ले लूं, जो भी जमाने में था, मेरे पास गाड़ियां हो, मेरा नाम काम हो, लेकिन वो रेत पर रहा, धूप सहता रहा, भूख सहता रहा, उसकी बीवी स्पॉइल में रही। उसके पीछे खुदा का हाथ था और खुदा का एक दिया हुक्म था कि ये तो कुछ एक ऐसी नस्ल बनाना जो पाक रास्त हो और मेरे रास्तों पे चलने वाली हो। कितनी दफा अब्राहम के दिल में ये बात आई होगी कि मैं फैसलाबाद चला जाता हूँ, सहारनपुर चला जाता हूँ, लाहौर चला जाता हूँ, लेकिन फिर दिल में आता कि वहां पे मेरा बेटा खराब हो जाएगा, ताश खेलेगा, बदकारी करेगा, हरामकार हो जाएगा, खुदा से दूर हो जाएगा, और मैं इसको क्या संभालूंगा, क्या इसको पालूंगा, क्या इसकी परवरिश करूंगा। फिर वो खेमों में रहता, टेंटों में रहता, कपड़े का घर बना के रहता, 1 महीना यहाँ, 1 महीना गांठ वाले, 1 महीना गोजरे, 1 महीना सियालकोट, कई जगहों पे फिरता रहा। इतना सोना, इतनी चांदी, रुपया पैसा होने के बावजूद, और पीछे एक ख्वाब था, एक ख्याल था, एक सोच थी। खुदा ने उसे एक बात कही थी कि याद रख, तेरी नस्ल से दुनिया की सब कौमों को बरकत पानी है। अगर तेरा बेटा खराब हो गया, अगर तेरा बेटा गंदगी में गिर गया, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा लॉस होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए तुझे अपने बेटे को तालीम देनी है, लेकिन ये तालीम शहरों में, बस्तियों में, कॉलोनियों में जितना मर्जी तू पढ़ा लेगा, जितना मर्जी सिखा लेगा, तेरा बेटा फिर गंदगी में गिरेगा। यही इन बाजारों में, यही रेता पे, यही घास फूस के मैदानों में तुझे अपने बेटे को लेना होगा, सिखाना होगा, पढ़ाना होगा। और किताब मुकद्दस बताती उसे वाकई इसहाक जैसा खुदा ने एक बेटा दिया। और बाइबल मुकद्दस गवाह है, पूरी बाइबल पढ़कर देख लें, इस इसहाक की नस्ल से हमारा निजात दहिंदा यीशु मसीह पैदा हुआ, जो सारी दुनिया का बादशाह और खुदावंद है। हालेलुया। और आज सारी दुनिया को इसहाक के वसीले से बरकत मिली है, लेकिन इसके लिए अब्राहम और सारा को कुर्बानी देना पड़ी। क्या हुआ भाई? अब्राहम को क्या करना पड़ा? किस मर्द का दिल नहीं चाहेगा कि जब उसकी जेब में 5-5 हज़ार के 10,000 नोट पड़े हों, उसके बॉक्स जो है वो 5-5 हज़ार के नोट से भरे हों, उसका दिल नहीं चाहेगा शोरूम पे जाए गाड़ी खरीद लाए? क्यों भाई? अब्राहम ने अपने दिल पे पत्थर रखा। वो जानता था कि मेरे बेटे के वसीले से दुनिया को बरकत मिलनी है, मेरे बेटे के वसीले से दुनिया को बरकत मिलनी है। अब दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। एक और भी हमें यहाँ पे नक्शा मिलता है। मैं समझता हूँ कि कोई बुरे से बुरा शख्स, गंदे से गंदा शख्स भी कभी ना चाहेगा कि उसके साथ वो किरदार हो जो एक बंदे लूत के साथ हुआ। बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है, मेरी स्टेटमेंट नहीं है, आप पढ़ सकते हैं पैदाइश की किताब के 19 बाब में। कोई भी शख्स जिंदगी में कभी ये ना चाहेगा, कितना भी गिरा क्यों ना हो, कितना बदकार क्यों ना हो, कितना हरामकार क्यों ना हो, कितना नापाक क्यों ना हो, कितनी गाली गलौज क्यों ना निकालता हो,
24 घंटे शराब पीता हो, वो कभी नहीं चाहेगा, माजरत के साथ जो मैं बात करने वाला हूं, कि उसकी बेटियों से उसकी नस्ल चले। कोई बाप चाहेगा कि उसकी बेटियों के सीने से उसकी बेटियों उसकी बीवी बन जाए? वो बाप चाहेगा? कोई डाकू, डकैत, चोर, हराम कर, बदकार, उबाश, स्मोकिंग करने वाला, नशा करने वाला, असमंदर, कोई गंदे से गंदा शख्स भी ये ना चाहेगा कि उसकी बेटियां उसके साथ शराब पी के सोएं और उन्हीं से 2 हराम के बच्चे पैदा हों, मुआबी और अमूनी, मुआबी और लेकिन ये एक रास्ताबाज लूत से ऐसा हुआ। लूत की बेटियों ने अपने बाप को शराब पिलाई और बाद में बाइबल में लिखा उसके साथ वो एक बीवी के साथ ताल्लुक रखा और दोनों के बेटे पैदा हुए। एक का नाम मुआबी था और दूसरे का नाम अमूनी था। बाद में ये मुआब और अमून 2 हरामी नस्लें, हराम की बाइबल में लिखा है कि हराम के बच्चे लूत से पैदा हुए। कोई जानता है किस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं? याद रखिए, खुदा पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता है। लूत की दोनों बेटियों ने जिस बदकारी रूह सही का किरदार अदा किया और शर्म से हमारा सर झुक जाता है। फरिश्ते लूत सदोम और अमोरा में गए और लूत को पैगाम देकर जल्दी जल्दी जाओ और अपनी बेटियों को, अपने दामाद को, अपने बेटों को बुलाओ, ये शहर जल जाने वाला है, बर्बाद होने वाला, तबाह होने वाला। लूत भागा गया, मेरे बेटे जल्दी करो, जल्दी आ जाओ बाहर। अब्बा जी क्या हुआ है? ये शहर जल जाने वाला है। अब्बा जी आप पागल हो गए? लूत भागा अपनी बेटी के पास गया, जल्दी करो, मेरे दामाद को बुलाओ, बेटा जल्दी करो, ये शहर बर्बाद होने वाला है। तो बेटियों ने बोला कि तुम पागल हो गए हो? याद रखिए, बेटियां इनकार कर रही हैं और 2 बेटियों ने वो करना, ये भी मर जाती, जल जाती तो अच्छा होता। लूत की 2 बेटियां जो शहर से निकल आई, अगर वो शहर में जल जाती तो कितना अच्छा होता। लूत पर ये दबा कभी ना लगता। लेकिन मैं समझता हूं कि ये बेटियों का इतना कसूर नहीं है। बेटियों का इतना कसूर, भाई समझ आ रही सबको? समझ आ रही है? जी बहनों समझ आ रही है? मैं समझना कि बेटियां देना कसूर नहीं। अब सुनो, एक जमाना था, चाचा भतीजा सबके सामने ढोल बजाकर, खाने पका के, ज़ियाफ़त करके कई दिन तक ढोल बजते रहे, चुगलियां पटाखे चलते रहे। सब दसिया पे सी खुदा ताला दी राह चलने डे पे। लूत भी साथ आया, लेकिन मैं समझता हूँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मुझे ये शक पड़ता है, शक मेरा शक ठीक है। 3-4 महीने गुजरे ते लूत की बीवी को बेचैनी लगी गई। उन्हें देखा मेरे तो वाल ही सारे आकड़ उकड़ गए हैं, ना शैम्पू छेती मिलता है, ना कितने पार्लर है, ना मेरे वाल डाई होंगे ने, ना कपड़े चाहते मिलते हैं। किहड़े राह चल पे हैं असी? सिर च मार दिया बात की करना खुदा नुसी। दिन रात उसने लूत का जीना हराम कर दिया। लूत का जीना हराम हो गया। 3-4 महीने जब गुजरे, सारा आराम से अपने खामन के साथ चलती रही, लेकिन गालिबन लूत की बीवी ने इस बात के लिए अपने खामन का जीना हराम कर दिया। हम क्या करेंगे खुदा को? क्या करेंगे बातों को? क्या करेंगे सांसों को? क्या करेंगे गीतों को? क्या करेंगे ज़बूरों को? मुझे खुदा की हज़ूरी नहीं चाहिए, खुदा की ममूरी चाहिए। मुझे नए सूर लेकर दे, या तो धूल है, धूप है, रेत है, रेत असी की करना है, असी मरना थे, चलो किसी शहर चलिए। तड़पा कर रख दिया होगा लूत को उसकी बीवी ने। लेकिन मर्दों का अपना फैसला होता है। वो मर्द था, उसे अपनी बीवी को धमकियां लगाना चाहिए थी। अपनी बीवी के, उसकी बीवी ऐसा करती भी है, तो लूत को अपनी नस्ल के बारे में सोचना है। लूत को अपने बच्चों के बारे में जानना है कि मुझे कहां जाना है, ये मेरी बीवी क्या कर रही है। लेकिन लूत ने अपनी बीवी के सामने हार मान ली और अपने चाचे को कहने लगा, चाचा जी बहुत हो गया, हम असी इकट्ठे नहीं रह सकते, हम असी इकट्ठे। उन्हें कहा पुत्र गल भी हुई, उन्हें कहा जी नहीं इकट्ठे रह सकते सी। उन्हें कहा चल दस किधर जाना है, जे तू चढ़ते पासे जाएगा तो मैं लेके पासे जावांगा। फौरन लूत ने कहा कि बाजी चाचा जी मैं सामने और सदूम ते अमूरा जाना। कितने जाना मैं? सदूम ते अमूरा बदी का दूसरा नाम था। वहाँ पे बाप और बेटी की शादी होती थी, बहन भाई की शादी होती थी। वहाँ मर्द से शादी करता था, औरतें शादियाँ करती थी। वो शहर बदी में डूबा हुआ था, हालांकि बड़ा रंगीन शहर था। टेक्सटाइल थी वहाँ पे, सोने का काम था,
हाथी दांत का काम था, बड़ी बड़ी मिलें थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, वहाँ पे खाना पीना सोना जीना मरना बड़ा खूबसूरत था। 7-7 मंजिला 20-20 मंजिला बिल्डिंगें थी, फर्श लगे हुए थे, पत्थर लगे हुए थे, बड़ा हसीन शहर था। लेकिन ये सारा शहर बदी में डूबा हुआ था और लूत वहीं जा बसा, लूत वहीं पे। और मैं नहीं समझता कि जो कुछ उसकी बेटियों ने किया इसका सारा कसूर उन बेटियों का है। ये कसूर असल में किसका है? लूत का है। किसका कसूर है भाई? किसका कसूर है? लूत का है। लूत ने खुदा अपने चाचा का हाथ छोड़ दिया, लूत ने नेकी का साथ देना छोड़ दिया, लूत ने राष्ट्रवादी को छोड़ दिया, लूत ने चर्च को छोड़ दिया, लूत ने पादरी साहब को छोड़ दिया, और लूत ने खुदा की पाक मुकद्दस राह को छोड़ दिया। इस बाइबल में वो एक तारीख तरीन और गंदा इंसान बन गया जिसकी नस्ल उसकी बेटियों से चली। लूत कहाँ चला गया? तबाह हो बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। उसकी बेटियों का कसूर नहीं था। मैं समझता हूँ ये लूत का अपना कसूर था। अब सुन लीजिए, सुन लीजिए, जिस आदमी ने खुदा की राह को अपनाया, आप भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। जब अब्राहम इसहाक को ले गया, पहाड़ पर ले गया, तो वहाँ पे इसहाक ने एक सवाल किया, अब्बा जी असी तो तक आ गए थे, साढ़े को कोई बर्दाश्त ना किड़ा है। पहले तो अब्राहम ने कहा कि बेटा खुदा खुद मुहैया करेगा, खुदा। फिर वो रोक रहा होगा और फिर उसने आखिर कहा कि तेरी कुर्बानी होगी है। किसकी? मैं समझता हूँ कि मेरे कद से ज़्यादा कद होगा इसहाक का, और इतने इतने उसके मसल होंगे। ये आज से 35 सदियाँ पहले की बात है। कितनी भाई? कितनी? और वो दूध, खालिस दूध पीता था, खालिस घी खाता था, मक्खन खाता था, दही खाता था। वो इतना बड़ा गबरू होगा, एक पल में वो अपने बूढ़े बाप को, 100 साल बाप को धक्का देकर नीचे फेंक सकता था। एक पल में कैसे? बाजी है तो सही कहता है, मैं नहीं बनू कुछ छुरी। अब में से कितने नौजवान है जो पसंद करेंगे मेरे गले में छुरी फेरी जाए? क्यों भाई? आज का 17 साल का नौजवान चाहेगा कि मेरे गले छुरी फेर दो भाई? वो चाहेगा? आप देखें, फिल्म में देखें, बाइबल पढ़े, कुर्बानी को बांधा जाता था ताकि वो भागे नहीं। आप फिल्म में देखें तो इसहाक ने क्या किया, उसके बाप के हाथ कांप रहे हैं, बाप के क्या भाई हाथ कांप रहे हैं, तो इसहाक क्या कर रहा है कि रस्सियां पकड़ के खुद बांध रहा अपने आप और कहता कि अब्बा जी अब जो करना चाहते हैं करें, मेरी वजह से परेशान ना हो। आमीन। मेरी वजह से परेशान ना हो। आपके खुदा ने जो कहा है उसे आप कर डालें। और याद रखिए, जब उसने छुरी पकड़ी, खुदा ने बाप और बेटे का ईमान देखा, खुदा ने बाप और बेटे की मोहब्बत देखी, बाप और बेटे का सलूक देखा। उसी वक्त खुदा ने कहा अपना हाथ रोक ले, अब मैं जान गया हूं कि तू मुझसे मोहब्बत रखता है और तेरी बादशाही की कभी इम्तिहान होगी। तेरी नस्ल में से एक बादशाह आएगा, यानी यीशु मसीह, जिसकी बादशाही अब तक कायम रहेगी। हालेलुया। और यीशु मसीह इसहाक का सिलसिला। और लूत कहाँ चला गया? लूत मर खप गया, उसकी बेटियां मर खप गई। एक हराम की नस्ल दुनिया में छोड़ गए लोग। वो आज भी गली बाजारों में वारा फिर रही है। आज भी कहाँ चले गए? दो बाप मैं देखता हूँ, एक अब्राहम का जो कुर्बानी देता है अपनी ख्वाहिशों की, अपनी चाहतों की। अब्राहम का दिल करता कि मैं ताश खेलूँ, जाकर भाई लूडो खेलूँ, बैठकों में वारा फिरूँ, इतना पैसा लगाऊँ, शराब लाऊँ, लेकिन उसने कुर्बान कर दिया। आज मैं देखता हूँ जो घर बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। मैं नहीं समझता उसमें बच्चों का कसूर है। पाकिस्तान के अंदर देखें, पूरी दुनिया में जाकर देखें, पूरी दुनिया में देखें, हमारी औरतों से हमारे चर्च भरे हुए हैं और मर्द किधर है? ये जगह कितनी खाली पड़ी हुई। खुदा ने अब्राहम से कहा था कि तू अब नसीहत करेगा। कौन करेगा भाई? कौन नसीहत करेगा? नसीहत करेगा अब्राहम करेगा। और आज कितने बाप हैं जो जिम्मेदारी से चर्च में आते हैं, क्योंकि
हम अपने मुस्लिम भाइयों से सीखते हैं कि वो उनकी औरतें मस्जिद में नहीं जाती। कौन जाते हैं? मर्द जाते हैं। और मर्दों को देखकर उनके बच्चे भी कल टोपियाँ पहनकर चले जाते हैं। हमारे मर्द चर्च में नहीं आते और बच्चे हमारे फल चढ़ गया है। जहाँ भी मैं जाता हूँ यकीन मानिए 7वीं 8वीं 7वीं 8वीं 5वीं इससे बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे। स्कूल खाली है और नतीजा क्या निकला? बेटियां बढ़ जाती हैं। मेरे पास रिश्तों की एक लिस्ट पड़ी हुई है और मैंने कोई जवाब नहीं दे सकता। लड़की MSc है, स्टाफ जनरल स्टाफ है, सोशल सिक्योरिटी में काम कर रही है, 90,000 रुपये उसकी सैलरी है। कोई लड़का दूर तक नहीं है, कच्चा फल हमारी गलियों में फिर रहा है। मेरा दिल जल जाता है। नौजवान बच्चे और जैक नहीं पा के और झाड़ू फिर नवासी खड़ोते नहीं। खुदा नाराज है हमारी कौम से। मर्द किधर है हमारे? अब्राहम किधर है? और इस तबाही का सबब खुदा नहीं है, इस तबाही का सबब मर्द है। वो बाप है जो दिन रात काम 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 बस काम, और बच्चे जब वो कमा कर बूढ़े जाते हैं। कितने घरों से मैं वाकफ हूँ, खानदान उजड़े हुए हैं। आज बच्चे अपने माँ बाप को मारने के लिए खड़े हैं, तैयार, बच्चे मारने को तैयार खड़े हैं। हिस्से फिल्माई हो रही है। ना बाप सारी में चर्च गया, ना बच्चों को तालीम आई, ना सिखाया। अब्राहम ने कैसा फैसला किया? उसने नुकसान उठाया। क्या हम एक रोज काम छोड़ सकते हैं? क्या हम अपने पैसे का नुकसान उठा सकते हैं? क्या हम खुदा के साथ चल सकते हैं? जी, अब्राहम ने बहुत नुकसान उठाया। अपनी सारी जवानी सारी ताकत उसने रेत पे गुजार दी, कुर्बानियां देता रहा। अब्राहम अपना पैसा कहाँ लगाता था? खुदा की राह पे। कहाँ लगाता था? करोड़ों रुपया वो हर रोज सुबह शाम बकरे बछड़े और खुदा के सामने बैल कुर्बान करता था। नौकरों को खिलाता था, लोगों को दावतें देता था, खुदा की तालीम देता था और उसका बच्चा भी उसी राह पर चलता रहा। आज पाकिस्तान के अंदर जो मैंने शुरू में दुख का इजहार किया है, हमारी जवान बेटियां क्यों गुमराह होती हैं? बच्चों के कद इससे आगे नहीं जाते, होश संभालते हैं, बाल यहाँ तक चले जाते हैं, ठीक है, और कानों में बालियाँ होती हैं। बताएं ये बाइबल का फैशन है हमारा? क्यों भाई? बच्चे कहाँ सीखते? बाप को परवाह नहीं है। बाप का काम है बस मैं कमा कर सारी दुनिया अपने बच्चों को झोली में डाल दूँ। तेरा बच्चा वारा हो रहा है, कल तो क्या करेगा? नौजवान लड़के अपने बाप को फॉलो कर रहे हैं, माँ को फॉलो नहीं करते। और बाप का बैठा हुआ है, बाप को चर्च की परवाह नहीं है, इबादत की परवाह नहीं है, खानों की परवाह नहीं है, बाइबल की परवाह नहीं है। तरक्की, काम काज और तबाही बर्बादी सब में खड़ी है। लूत बाद में पीटा पछताया, अपने हाथों को काटता होगा, लेकिन सियाने कहते क्या वक्त पर हाथ नहीं होगा। अब पछताए क्या फायदा जब चुड़िया चुग गई? सबक भी चुका था। अब्राहम ने ठीक फैसला किया। तो जो बाप यहाँ बैठे हो सुन लीजिए मेरी बात गौर के साथ। मैं कुछ चैलेंज देता हूँ, पूरे पाकिस्तान में फिर के देखें, हमारे चर्चों में औरतों के ढेर लगे हुए हैं और मर्दों की जगह सारी खाली पड़ी होती है। और अगले जो बच्चे पैदा होते हैं, जो मर्द पैदा होते हैं, वो अपने बाप को फॉलो, बाप के पाँव पर पाँव रखते बैठकों में चले जाते हैं, फैशन में चले जाते हैं, आवारा हो जाते हैं। 10 दिन स्कूल जाते हैं, 8वीं में जाते हैं और साल में दर्द होना शुरू हो जाता है और 8.5 मुनासिब पढ़ के वो थक जाते हैं। ऐसा ही है। और बेटियां बेचारी देख रही कि हम किस तरफ जाएं, और जब उनके हाथ में कोई मोहल्ले में नहीं मिलता, वो अपना हाथ गैर कौमों के हाथ में दे देती है। मैं नहीं कहता कैसा करें, ये गुनाह है, ये पाप है, ये कुफ्र है, लेकिन जब उन्हें कोई सहारा नहीं मिलता तो ऐसे गलत कदम उठाती हैं। आप भी देख लें यहाँ पे कितने MSc लड़के हमारे, कितने बच्चे FSc में पढ़ रहे हैं, तादाद देखे कितनी है कितने नौजवान। तो खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता है। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा बच्चों को पढ़ा सकता है, लेकिन खुदा हमसे नाराज है। बाइबल में लिखा है कि खुदा बादशाहों का दिल पानी की तरह, बच्चों का दिल पानी की तरह फेर देता है। अगर बाप ठीक हो जाए तो उनके बच्चों को खुदा बरकत देगा। और बच्चों का आप कहने के साथ किताबा ले दो, मैं आगे पढ़ना नहीं, लेकिन ये बच्चे जो 8:45 पढ़ के भाग जाते हैं और तालीम हासिल नहीं करते, झाड़ू उठा देते हैं, आवारा फिरते हैं, ना पल्ले काम होता है, ना पल्ले पैसे होते हैं, ना जिंदगी, ना मौत, और आवारा गर्दी शुरू हो जाती है। आइए, जो बाप यहाँ बैठे हुए हैं, मैं जानते तलख बातें हैं, और समझ लें कि आपका बाप होना काफ़ी नहीं है, कमाना काफ़ी नहीं है, पैसे लाना काफ़ी नहीं है, यहाँ पे खुदा के ज़ुल्म में बैठना आपका काफ़ी है।
قربانی دے اپنے وقت کی، اپنی یاشوں کی، بدماشوں کی، فاشوں کی، آوارگی کی، تاش کی، محفلوں کی، بیٹھکوں کی، یہ چوکوں کی قربانیاں دے رہے، چوکوں میں کھڑے نہ ہوں یا پھر ٹولے نہ بنائیں. آپ کا چھوٹا بچہ جو 2 سال کا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، جب بڑا ہوگا تو وہ آپ کی طرح بنے گا، چرچ میں جانا پسند نہیں کرے گا، پاشوں کے خلاف بولے گا، چندے کے خلاف بولے گا، بائبل کے خلاف بولے گا. ایک آوارہ گرد اور ناپاک نسل پیدا ہوگی، وہ پڑھے گی بھی نہیں اور انہی گلیوں میں آوارہ کرتی رہے گی. اور آپ سارے کو بھی بچے کی شادی کر دو گے، کل اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ اپنا گھر بھی نہیں چلا سکے. آئیے خدا کو خوش کریں، نہ کہ بیویوں کو خوش کرنا ہے، نہ محلے والوں کو، نہ بیٹھکوں کو. کس کو خوش کرنا بھائی؟ خدا کو. کس کو خوش کرنا ہے؟ خدا کو. آئیے خدا ان کے جلال کی زوردار تالی بجائیے. سب کے باقی ہے، سب خدا کی ضرورت ہے. سب دعا کریں گے اپنے اپنے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے دعا کریں. جن کو خدا نے باپ ہونے کی توفیق دی ہے وہ سمجھ لے کہ میرا بڑا فرض صرف کمانا نہیں ہے. ارے کما کر ساری دنیا کی کمائی آپ اپنے گھر میں ڈال دیتے ہیں، کل آپ کا بیٹا غداری کر جاتا ہے، بے وفائی کر جاتا ہے، خدا نہ کرے اور کچھ نہ، آپ کی مرضی کے خلاف وہ شادی کر لے بھا کر، ساری زندگی آپ روتے رہیں گے، آنسو بہاتے رہیں گے. جس بچے کی خاطر میں رات 24 گھنٹے کام کرتا تھا، اس بچے نے میری گل نہیں بنی، تو کیا آپ کو پلے آئے گا؟ آئیے خدا کی ضروری بہنا سیکھیں، خدا کے سامنے اپنے پیسے دینا سیکھیں، خدا کو قربانیاں دینا سیکھیں، خدا کے خادموں سے دوستی کر لیں، خدا کے سامنے آنا سیکھیں، خدا کی حضوری میں آنا سیکھیں. دکھ سو خدا پہ ڈال دیں، کام ضرور کریں، اتنا کام کرے کہ آپ کو عبادت کے وقت مل جائے، آپ خدا کا کلام پڑھ سکیں، آپ دعا کر سکیں. آپ کا بیٹا آپ کو خدا کے سامنے جھکا ہوا دیکھے، آپ کا بیٹا آپ کو دعا کرتا دیکھے، چرچ میں جاتا دیکھے. باپ جتنے باپ یہاں بیٹھے ان سے گزارش ہے اپنے بچوں کی انگلیاں پکڑ کر چرچ میں لائیں، اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کر چرچ میں لے کر آئیں. جب وہ خدا کے وفادار ہوں گے تو تعلیم حاصل کریں گے، بچے میٹرک سے باہر نہیں جائیں گے، انڈر میٹرک نہیں رہیں گے، ایف اے کریں گے، ایف ایس سی کریں گے، ایم ایس سی کریں گے.